स्वागत है दोस्तों स्टॉक पिक्स चैनल पे। दोबारा आपसे वीडियो के द्वारा मिलकर बहुत ही खुशी हुई। आज भी हम हर बार की तरह दो बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लाए हैं आपके लिए। वीडियो के अंदर जाने से पहले आज का इन्वेस्टिंग कोड बता देता हूं मैं आपको। और आज का कोड है इन्वेस्ट योर एनर्जी इनटू समथिंग दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट योर ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, स्टॉक के ऊपर जाते हैं और आज का हमारा पहला स्टॉक है इंडिया मार्ट। India Mart is the first and largest B2B digital marketplace in the country. Today stands out as a game changer on the B2B landscape. It focuses on integrating the small and medium business into the new paradigm with speed and ease. They are constantly pushing the frontiers of innovation to make the online marketplace more accessible, visible, and engaging to them. The company has been diversifying its presence and now the metro cities accounts for 33% of the buyers, tier 2 cities accounts for 26% and the rest of the India accounts for 41%. The diversified presence helps to minimize the impact of region specific risk on the business. It has a nationwide coverage with 85 office branches and a sales and service staff of 4,000 employees. The company commands nearly 60% of the market share of the online B2B classified space, which makes it the largest player in the industry. It has a portfolio of 6 million supplier storefronts, 102 million registered buyers, and a total traffic of 748 million repeated users. The business has 71 million products from 56 different industries listed across its websites, which makes it one of the most diversified marketplace in the country. No single industry accounts for more than 10% of the marketplace. Industrial plants, machinery and equipment is the largest category in the marketplace, which covers 8% of it, followed by construction and raw material for 7%, apparel, clothing and garments for 6%, packaging material for 6%, consumer electronics and household appliances for 5%, and many more. The business for the company largely comes from small and medium enterprises. The platform makes it easier for buyers and suppliers through its offerings, which include the marketplace, convenient price discovery, intelligent connect, and easy and secure payments. The company sources 95% of its revenue from the suppliers or sellers listed on its marketplace. 58% of the revenue comes from sellers in the metro cities, followed by tier 2 cities for 28% and the rest of India for 15%. The company also have a very good ROCE and ROE rate of 39.5% and 30.2% respectively. The biggest plus point of this company is that it is a zero debt company. Also, the company has a very strong promoter holding of 50%. In the recent times, the FIIs and DIS have doubled their stake in the company. From the last 5 years, that is from March 2015, the company had 107 crore worth of assets under it. Today, they have 2672 crore worth of assets under them. इंडिया मार्ट का ईयर रिजल्ट्स और प्रॉफिट कंपैरिजन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2018 पे 404 करोड़ का सेल्स हुआ था और नेगेटिव यानी 72 करोड़ का लॉस हुआ था। और मार्च 2019 पे 497 करोड़ का सेल्स हुआ था और 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2020 पे 624 करोड़ का सेल्स हुआ था और 146 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2021 पे 665 करोड़ का सेल्स हुआ था, 287 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और करंट फाइनेंशियल ईयर पे 729 करोड़ का सेल्स हुआ है और 304 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इंडिया मार्ट का ईयर रिजल्ट्स और प्रॉफिट कंपैरिजन से आपको ये पता चलेगा कि मार्च 2018 से कंपनी नेगेटिव पे रन हो रहा था, लेकिन उसके बाद एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया, उसके बाद कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेक कर रहा है। लास्ट 5 ईयर से अभी कंसिस्टेंट है कंपनी। और कंपनी का चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं मैं आपको। ये दोस्तों इंडिया मार्ट का चार्ट करंटली 4924 पे ट्रेड हो रहा है। ये जो जोन है ये 5208 और 4733 का जो जोन है, ये नो ट्रेड जोन हम कंसीडर करते हैं। जब भी स्टॉक नो ट्रेड जोन के अंदर ट्रेड होता है तो 50% पॉजिटिव मूवमेंट और 50% नेगेटिव मूवमेंट का चांसेस होता है। अभी करंटली इंडिया मार्ट नो ट्रेड जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है। वंस 5208 का रेजिस्टेंस जो है इंडिया मार्ट का, उसको ब्रेक करेगा और क्लोज होएगा क्लोजिंग बेसिस पे, हमारा एंट्री 5208 पे रहेगा और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो होगा 4733 का हमारा स्टॉप लॉस होएगा। और हमारा टारगेट जो रहेगा वो होगा 6353 का हमारा टारगेट रहेगा। इंडिया मार्ट एक फ्यूचर इन्वेस्टिंग कंपनी भी बोल सकता है दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में सब लोग अभी ऑनलाइन के ऊपर निर्भर है और इंडिया मार्ट ऑलरेडी एक ऑनलाइन बिजनेस कंपनी है। तो इंडिया मार्ट का जो प्राइस है वो हाइक होने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है दोस्तों।
कंसिस्टेंटली ग्रोथ बताने वाला कंपनी है, वो आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। समथिंग 50% के आसपास नीचे गिरा था स्टॉक। यहाँ से एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट का चांसेस ज्यादा है इंडिया मार्ट का। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं, वो है आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिया मार्ट का चार्ट पे। आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर, यानी 1 फेब को जो प्राइस जो था वो था 5239 का ओपनिंग प्राइस था, और अभी करंट प्राइस जो है वो है 4924, यानी प्राइस घटा है। 32 आरएसआई था 1 फेब पे, और अभी करंट आरएसआई जो है वो है 58। आप देख सकते हैं नियरली 30 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट है आरएसआई पे, और प्राइस डाउन हुआ है और आरएसआई बढ़ा है, यानी पॉजिटिव मूवमेंट का ज्यादा ही चांस है। लेकिन फिर भी हम रिस्क कम लेंगे क्योंकि नो ट्रेड जोन पे ट्रेड हो रहा है जो स्टॉक का प्राइस है। करंट प्राइस पे चाहिए तो भी आप एंटर कर सकते हैं 4733 को स्टॉप लॉस कंसीडर करके, और 30:30 फॉर्मूला यूज करके। तो आपको लॉस होएगा तो भी ज्यादा कुछ लॉस नहीं होएगा, एवरेज हो जाएगा आपको। और लेकिन हमारा मेन स्टॉप लॉस जो रहेगा वो होगा 4295 का हमारा मेन स्टॉप लॉस है। जब तक मेन स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होएगा क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक हम इंडिया मार्ट का स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं जितना चाहिए उतना। ठीक है दोस्तों, हमारा सेकंड स्टॉक के ऊपर जाते हैं, और आज का हमारा सेकंड स्टॉक रहेगा कैस्ट्रॉल इंडिया। Castrol India Limited is principally engaged in the business of manufacturing and marketing of automotive and industrial lubricants and related services. The company manufactures and sells various kinds of oil lubricants and other fluids for car, motorcycle, commercial vehicles and others. The company's distribution network includes 350 distributors who services 1 lakh customers and sub-distributors. The company also serves 3000 key institutional accounts directly from distributors. The company owns and operates 3 manufacturing plants in India, which are located in Patalganga, which is in Maharashtra, and Parpur in West Bengal, and Silvassa Union Territory. In July 2020, the company's ultimate promoter, BP PLC and Reliance Industries Limited, started their Indian Fuels and Mobility JV, Reliance BP Mobility Limited. BP has already paid Reliance Industries $1 billion for 49% stake in JV, with Reliance holding the rest 51% stake. The JV aims to become the leading player in the Indian fuels and mobility markets. The JV has benefited the company as it began selling fuels and Castrol lubricants from Reliance Industries' existing retail outlets. The company is owned by Castrol Limited, United Kingdom, which is a globally trusted multinational brand. Castrol products are sold in more than 150 countries and is preferred lubricant partner for Volkswagen, Audi, BMW, Komatsu and many more other businesses. It was acquired by BP PLC in 2002, which is one of the 7 oil super majors in the world. Castrol India has a very strong ROCE and ROE and dividend yield of 67.4%, 50% and 3% respectively. The company is one of the debt-free companies in India with a strong promoter holding of 51% stake. कैस्ट्रोल इंडिया का ईयरली सेल्स और प्रॉफिट कंपैरिजन देख लेते हैं दोस्तों। दिसंबर 2017 पे 3584 करोड़ का सेल्स हुआ था और 692 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और दिसंबर 2018 पे 3905 करोड़ का सेल्स हुआ था और 708 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर 2019 पे 3877 करोड़ का सेल्स हुआ था और 827 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर 2020 पे 2997 करोड़ का सेल्स हुआ था, 583 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर 2021 पे 4192 करोड़ का सेल्स हुआ था और 752 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है दोस्तों, कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड का चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं मैं आपको। ये है दोस्तों कैस्ट्रॉल इंडिया का चार्ट। करंट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो है 105, और हमारा एंट्री प्राइस जो रहेगा वो भी करंट ट्रेडिंग प्राइस पे हमारा एंट्री रहेगा, और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो होगा 103। और अगर 103 को ब्रेक करेगा तो 99 के आसपास तक गिरने का चांसेस है स्टॉक को। 99 हमारा मेजर स्टॉप लॉस रहेगा, जब तक 99 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम होल्डिंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और एक खास बात कैस्ट्रॉल इंडिया का चार्ट के ऊपर जो है वो है डिविडेंड। 3 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड आने वाला है। अभी कैस्ट्रॉल इंडिया का जो प्राइस है वो बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहा है, करीब से कोरोना का टाइम के पास ही 105 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और स्टॉक अभी फिर से वही रेंज पे आया है। यहाँ पर भी बाय कर सकता है, जैसे कि अभी कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट दिखा रहा है, सेल्स भी दिखा रहा है, तो कंपनी का आगे बढ़ने का चांसेस है। और ऊपर से अभी रीसेंट टाइम्स का जो वॉल्यूम है वो भी शानदार वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं सबके सब बड़े बड़े कैंडल्स है वॉल्यूम। कंपनी का हिस्ट्री देखेंगे तो उतना कुछ खास वॉल्यूम नहीं था, लेकिन अभी रीसेंट टाइम्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग है, यहाँ से एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट का चांसेस है। और हमारा टारगेट जो रहेगा वो होगा 120 का हमारा टारगेट होगा।
जल्द से जल्द कंपनी 120 का टारगेट को अटेंड करने का चांसेस ज्यादा है। 8 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है, जल्द से जल्द अभी 48 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करेगा। जैसे कि इंडिया मार्ट पे हम देखे थे, यहाँ पर भी एक आरएसआई डाइवर्जेंस भी विजिबल है हमें, यानी मार्च 3 का जो आरएसआई था वो है 35 और अभी लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन यानी 8 अप्रैल को 48 का आरएसआई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक 15% के आसपास एक पॉजिटिव मूवमेंट है। प्राइस घटा है लेकिन आरएसआई बढ़ा है, तो आगे बढ़ने का स्टॉक का ज्यादा ही चांसेस है। ये था दोस्तों दो बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आज के लिए हमारे तरफ से। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भी न्यू वीडियोस के लिए। मिलता हूं मैं आपके साथ अगले वीडियो पे, तब तक हमारा चैनल के साथ बने रहिए। कोई भी क्वेरीज रहेगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है उनके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है नीचे, उसको क्लिक करके जल्द से जल्द ओपन कर लीजिए। हम साथ में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू दोस्तों।